कि what actually happens in Newton's second law of motion. So, uh, all of you might remember this, the two examples which I gave the other day. One about our Sir Jadeja, who is a very good fielder, and I explained you that why he is a good fielder. There's a reason behind this, and that reason is Newton's second law of motion. Whenever he catches the ball, he draws his hand backwards. उससे क्या होता है, टाइम कम हो जाता है, एंड सॉरी टाइम बढ़ जाता है बॉल को कैच करने का, एंड दैट इनडायरेक्टली reduces the amount of force क्योंकि inverse relation में होता है. Then I also told you about this example, Bruce Lee wala example, that why does the martial art people, they usually do this kind of motion while they are about to hit a brick or a pile of bricks. So सबके पीछे का reason Newton's second law of motion है. In fact, in this whole world, everything is based upon Newton's laws of motion, be it first law of motion, second law of motion, or third law of motion. Third law of motion is very much important. We'll be studying that today. And just a quick revision that what is momentum. So momentum is how we measure something that is in motion. Anything which has a mass and that is in motion is known as has some momentum. So momentum is equals to mass into velocity. Then momentum is the quantity of motion and is compounded by the quantity of the matter moved and the velocity with which it moves. Momentum is present when you walk, run, etc. If a bicycle and a car travel down the street at an equal velocity, the car will have the most momentum. Why? Because car has much more mass than that of a bicycle. So that is momentum. Now, momentum is a vector quantity. It has velocity. We can see it very clearly. We all remember. You all remember what are vectors? And these were some questions which we did on inertia. Inertia में किसी को कोई doubt है अभी भी, या कोई question ऐसा हो which I haven't covered and that question is in your mind, then please put forward that question. We'll discuss it right now and then we'll move forward on Newton's third law of motion. If anyone is having any question on Newton's first law of motion, second law of motion, anything. Good afternoon, everyone. No doubt. Thank you, Shubham. Anyone else? Thank you, Sejal. Thank you, Akanksha. Okay, then fine. We'll move further then. Okay. So we'll be having classes 2 days consecutively, today and tomorrow. See, I have split it accordingly. So firstly, I gave you a homework which I think you might not have done. So I'll explain this right now only. How can Newton's first law of motion be obtained from second law of motion? So the question is that how can Newton's first law of motion, that is inertia, can be obtained from second law of motion, that is momentum. This talks about force also, right? Force is equals to mass into acceleration, and then we have read about momentum as well. So let us read this out first and then I'll explain. So when a net force is zero and when moving with constant speed, if a body is moving at constant speed, Newton's first law of motion states that a body at rest will remain at rest unless an outside force acts upon it. And a body in motion at a constant velocity will remain in motion in a straight line unless acted upon by an outside force. Inertia talks, if something is at rest, it would remain at rest. If something is in motion, it would be in motion. A constant motion we are talking about, a uniform motion, no acceleration. Then, if a body experiences an acceleration or a change in direction of motion, it must have an outside force acting upon it. Outside forces are also sometimes called net forces. So, होता क्या है कि we have read that equation F is equals to ma, and now we know that acceleration depends upon force as well as mass.
That is very clear to all of you कि acceleration depend करता है force पे भी और mass पे भी. So that means if something is having an acceleration, कुछ भी body है, any system that is having acceleration, that means कुछ force act कर रहा है उस पे. Because acceleration is equals to force upon mass. That means if a force is acting on a body, then only it will have acceleration. Correct? External force, यहाँ पे हम लोग external force की बात कर रहे हैं. अगर external force है, then only it will have acceleration because acceleration is equals to force upon mass. Now, the thing is, how can we derive it from second law of motion? So let us see. So second law of motion states that if an unbalanced force acts on a body, that body will experience acceleration, that is change of speed or velocity, you can say. Talking in 1D, so we can take speed velocity as same. So outside forces are sometimes called net forces, unbalanced forces, external forces. Three of these things which we use to denote force. If a net force acting on a body is zero, the body will be at constant velocity. Now I'll explain how. Let us use whiteboard for today. I haven't used it. That would be better, right? Okay. Is it visible to all of you, the whiteboard on the screen? Just quickly respond so that I could know. चलो, okay. ठीक. So अभी इसको हम लोग derive करते हैं because this is a very conceptual thing which can be asked in any question with multiple options. So let us draw firstly. So I told acceleration is equals to force upon mass, and let us consider this force as net force. Net force acting on a body, total force. Okay, and we can call this as external force as well. Now tell me, if I do F is equals to 0, net force is equals to 0, that means acceleration is 0, isn't it? By simple mathematics, if F becomes 0, acceleration also becomes 0. अगर acceleration 0 हुआ, what does that imply? That clearly and blatantly implies that acceleration 0 है, तो मतलब कि constant velocity से body move कर रही है, constant speed से body move कर रही है. So isn't that the first law of motion? Are you getting it? हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन में बस कुछ नहीं किया, हमने F को 0 कर दिया. F 0 किया तो A 0 हो गया. जैसे ही A 0 हुआ, A 0 का मतलब होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से द बॉडी इज मूविंग एंड इट हैज कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी स्पीड सब सेम, 1D में सब सेम. ठीक, तो मतलब क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं हो गया कि अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if the net force acting is 0 on that body? Derive हो गया, कुछ करना ही नहीं था. You just have to take the second law equation and just put the value of F is equals to 0. That is, external force acting upon a body is 0. That means it has a constant velocity and it is maintaining a uniform motion. That is also known as law of inertia. Is it clear to all? I am erasing this because that's a very lucid explanation of this topic. I don't think any further explanation is needed on this thing. बस F को 0 करो, बाकी you have the results in front of you. ठीक है, चलो इसको कर दो क्लियर, इसको कर दिया बंद. अरे just a second, sorry. Okay, हाँ, so बस derive हो गया. So देखो, this is what it is written here only, right? If the net force acting on a body is 0, the body will be at a constant velocity. Thus, Newton's first law of motion can be obtained from second law of motion. ये derivation for those who are from science sites, ये सब CBSE में पहले और ICSE में they used to ask these kind of questions just to check your conceptual understanding that whether you have got the concept or not. So कुछ है नहीं, ऐसा कहीं आएगा नहीं, but हाँ, there could be questions on this only, but in a different format. The language could be different. Okay, so
So shall we move forward to Newton's third law of motion? Okay. Only 3 people think that we should move forward. Rest. See, I have this habit of I really want response in chat so that I could know that it's all clear to all of you. So please bear with that. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Gunjan. Thank you, Deepak, Aryan. Thank you, everyone. Okay, now let us move forward. So now I won't be giving any definition because you all know that I don't believe in these statements and all. Let us see some memes, some jokes that what is Newton's third law of motion. Okay. So see this. Is it all visible to all of you and it's being presentable? मतलब वो presentation mode में दिख रहा है, right? What is happening? दिख रहा है सबको, right? ठीक. तो ये क्या है? Newton's third law of motion तो है. Every action has an equal and opposite reaction. First, इन्होंने मारा monkey को. Monkey hits him back. This is what is Newton's third law of motion. It's nothing different. Okay. चलो ये हो गया एक एग्जांपल. अभी एक और देखते हैं. चलो, how do we escape this? Okay. ठीक. चलो अभी ये GIF देखो एक बार. This is also visible to all of you, right? मतलब एनिमेशन आ रहा है, right? उसका Aryan, is the animation visible? जैसा करोगे वैसा भरोगे. एग्जैक्टली. ठीक दिख रहा है सबको. ओके. चलो ओके फाइन. सो अभी ये बस जस्ट सी दीज थिंग्स. ओके. चलो एक और थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं. अब ये देखो, ये पहले पढ़ लो क्या है. नाउ आफ्टर दैट आई प्ले. ये देखो, ये सब केवल ये बॉलीवुड और ये क्लीशे डेली सोप में ऐसा होता है. इतना एक्सेलरेशन कैसे दे सकते हैं भाई किसी को आप इतने फोर्स से कि मतलब आपने मारा और फांसी लग गई उसको. दिख गया सबको? ये तीनों एग्जांपल देख लिए सबने? इज इट मतलब एग्जांपल्स में कोई दिक्कत लग रही? कुछ अभी तक फील हुआ कि क्या बात, what am I going to present forward after these 3 GIFs? Chasuma greater than Newton. Exactly. मतलब in this case Newton's third law of motion has been defied. क्यों? इतना हो ही नहीं सकता कभी. ठीक है. We know that every action has an equal and opposite reaction. ठीक. So now let us come to the definition. अभी हो गए memes, jokes. Now let us come to the definition. Newton's third law of motion. So if an object A exerts a force on object B, then object B must exert a force of equal magnitude and opposite direction back on object A. Very simple definition. ठीक. ये just एक example था just for laugh कि हाँ क्या हो रहा है. If you hit someone, he'll hit you back. ठीक. तो अभी those principles of महात्मा गांधी जी are not being followed कि यार किसी ने एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल भी आगे कर दिया. ऐसा नहीं होता है अभी. So this is what a third law of motion in very lucid terms. कि जैसा करोगे, as Aryan wrote, जैसा करोगे वैसा भरोगे. ठीक. तो वही है एक्शन रिएक्शन. ठीक. अब ये तो हो गए 2 जोक्स. अब इस केस को देखो, ये साइंटिफिक केस है पूरा. ठीक. अब इसमें क्या हो रहा है? सी, द पर्सन शूट्स द बुलेट and as soon as the bullet leaves the gun, तुरंत the pistol which he is holding तुरंत पीछे आ जाती है. There's a reason behind that. And what is that reason? Newton's third law of motion. Recoil. Exactly. Recoil. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? I'll tell. सबसे पहले यही एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है. Once again, I'll share the whiteboard.
चलो, दिस इज अ पिस्टल, पिचकारी नहीं है, दिस इज अ पिस्टल। ओके, अब इसके क्या बोलते हैं उसको, मैगजीन जो होता है पिस्टल का, ठीक है, जो उसके यहाँ पे बुलेट्स होती हैं, से देयर इज अ बुलेट इनसाइड, and as soon as you pull the trigger, the bullet, there's a chemical reaction inside the pistol, and chemical reaction से ये bullet यहां से it goes off, बाहर आ जाती है बुलेट। ओके, ये बुलेट बाहर आ गई। सो अब होता क्या है ना कि ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड द गन, व्हाट हैपेंस इज कि जब वो केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ उससे फोर्स बना, बुलेट पे कुछ फोर्स लगा, विच pushes it forward, उससे फोर्स लगा, इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में बुलेट गई, द बुलेट ऑल्सो एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द पिस्टल, बुलेट ने ही कुछ फोर्स लगाया। क्यों लगाया? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बुलेट आगे गई, उसने गन पे कुछ फोर्स लगाया जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया। अगर ये F है तो ये भी F है। ठीक, समझ में आ गया सबको दैट व्हाई डिड दिस हैपन। बुलेट आगे गई केमिकल फोर्स से, और बुलेट ने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे लगाया पीछे, ठीक है, एंड दिस इज अ वेक्टर, सो वी डिनोट इट विथ एन एरो। आई होप वेक्टर्स, एवरीवन रिमेंबर वेक्टर्स, कितने अच्छे से वी हैव डिस्कस्ड दैट टॉपिक। So vectors, and for the new ones, new people who have joined, I'll be giving the presentation. So if anyone is having any doubt, you could just personally text me, or when I'll give the slide, you could just read it out also. So no issues on that. Vector बहुत अच्छे से समझा हम सब लोगों ने। तो vector है ये, ठीक, and we all know vectors have direction, ठीक। तो अभी एक चीज बताओ, if I talk and if I say that, say F1 and say F2, now I say F1 is equals to F2. In this case, I am only talking about their magnitudes. I haven't put on the vector sign yet. Please, the thing to be noticed right now is there is no vector sign which I have put right now. अभी तक कोई vector sign लगाया नहीं है on either of the forces. So firstly tell me whether this is true or not. F1 is equals to F2 है कि नहीं है? Talking about magnitudes only. Thank you, Aryan sir. Please tell. F1 is equals to F2 नहीं है, शुभम, you saying नहीं है? Okay. Anyone else? Vivek, is Vivek here? Or anyone else who thinks? Please listen the question once again. I am talking only about magnitudes, and when we are talking about magnitudes, please remember we are talking about scalar quantities. Scalar में कोई direction नहीं होता है. So now tell, F1 is equals to F2 or not? Exactly, with negative sign. So that is what my question is, right? Answer the question is, अगर अभी केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सो यू कैन नॉट अलॉट अ साइन टू दैट, राइट? केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अभी, लेकिन जब हम इस पे वेक्टर साइन लगा देंगे तब ये अलग हो जाएगा। F1 is equals to minus of F2. अब सही है, अब वेक्टर साइन लग गया है, और वेक्टर में कन्वेंशन है, देयर इज अ कन्वेंशन जिसमें हमने डिसाइड किया था, बाहुबली वाला एग्जांपल, यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट एग्जांपल, कि वी हैव कन्वेंशंस फॉर वेक्टर्स। ओके, अगर हमने एक को पॉजिटिव लिया है तो एक को नेगेटिव लेंगे, राइट? एवरीवन रिमेंबर्स दैट एग्जांपल ऑफ बाहुबली वाला। सो और हमने किसको लेफ्ट नेगेटिव लिया था? हमने लेफ्ट को नेगेटिव लिया, राइट को पॉजिटिव लिया है। तो F1 राइट जा रहा है एंड F2 पीछे आ रहा है, तो F1 नाउ, अब देखो, अब से यहाँ पे वेक्टर लग गया है, तो अब हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन एज वेल एज देयर मैग्नीट्यूड्स। सो अब ये इक्वेशन सही है, F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2।
And there is one more way of denoting scalars, which is mod. So if I say mod of f1 is equals to mod of f2, that means yes, मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, देन इट इज करेक्ट. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों का अलग है. सिंपल सी बात है ना, दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग. हाउ डू वी क्लोज दिस ओनली? Just a second. Why is this happening? ओके, सो F1 का मॉड बराबर F2 का मॉड. मॉड जहां लग गया मतलब आपके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. नो डायरेक्शन इज टू बी कंसिडर्ड इन दैट केस. ठीक, नाउ इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं यार, ये क्या हो रहा है? अरे कैन समवन प्लीज टेल मी कि केवल व्हाइट बोर्ड को कैसे वी कैन minimize it, or do we have to remove? आर्यन, स्मिता, केवल व्हाइट बोर्ड को हटाना है, ये पूरा स्क्रीन शेयर ऑफ हो जा रहा है. Does anyone know? बोलो भैया कहाँ हो? आर्यन, हेलो. चलो अच्छा, एक काम करते हैं, we'll use the annotations only. है व्हाइट बोर्ड की वजह से बार बार बंद हो जा रही दोनों स्क्रीन्स, है ना? दैट वुड बी बेटर. इसको हटाते हैं, डायरेक्ट केवल वो उधर स्क्रीन करते हैं. चलो, सो हाँ, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2. चलो अभी एक और एग्जांपल लिखते हैं. जस्ट अ सेकंड. सो ये एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक, कि F1 इसने बुलेट ने फोर्स लगाया आगे बढ़ने के लिए, केमिकल रिएक्शन अंदर हुए, एंड द बुलेट वेंट फॉरवर्ड एंड द गन वाज विथड्रॉन टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, बिल्कुल सही. सो एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, वेरी मतलब, हाँ मतलब जरूरी बोल सकते हो कि एक बार ये थॉट आना चाहिए कि अगर ऐसा है देन व्हाई इज दिस सर, कि बुलेट तो काफी स्पीड से जाती है बट गन तो ऐसा नहीं है ना. मतलब ऐसा नहीं हो रहा है ना कि जिस स्पीड से बुलेट जा रही है उसी स्पीड से गन पीछे आ रही है. तो ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि व्हाई इज दिस हैपनिंग. हमने तो पढ़ा है कि यार फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है, एंड बिल्कुल लगता है, क्योंकि अगर ये गलत होता तो नथिंग वुड हैव वर्क. जितने भी
हमारा यूनिवर्स चल रहा है प्रिंसिपल्स पे, अगर ऐसा नहीं होता, डिफाई कर रहे होते ये सारी चीजें, देन तो मतलब ये गलत हो जाता, ये लॉ ही गलत हो जाता। तो ऐसा क्या है कि बुलेट तो आगे जा रही है बहुत तेजी से, बट गन तो नहीं ना एकदम पीछे चली जा रही है। सो क्या उसका रीजन क्या हो सकता है? हमने तो बोला कि यार एग्जैक्टली। ओके गुंजन, यू हैव द सेम क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, आई टेल। हाँ, मास। वी हैव, गुंजन यू आर न्यू, सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास आई गेस, तो देखो आई टेल यू क्या होता है। we'll use the rough portion for this. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं एंड we'll be discussing that. Yes sir, that is why I said that forces was not equal. No, no, Shubham, you are mistaken or you have misunderstood. फोर्सेस हमेशा इक्वल होंगे, रिमेंबर दिस। अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता कि फोर्सेस ऑपोजिट होते, जितने भी प्रिंसिपल्स गवर्न कर रहे हैं ना पूरे यूनिवर्स को, दोज वुड हैव फेल्ड एंड ये अर्थ चल ही नहीं पाता। फोर्सेस हमेशा इक्वल होंगे। नाउ लेट अस कम बैक टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड देन विल डिसाइड कि ऐसा क्यों हो रहा है। याद रखो, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। फॉर न्यू पीपल आई टेल यू, मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वेट। वेट और मास से बहुत अंतर होता है। वेट इज अ फोर्स, मास कोई फोर्स नहीं होता है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। जितना मैटर है हमारे अंदर, दैट इज आर मास, ठीक। तो अभी एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, मतलब यू हैव एन एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। फॉर न्यू पीपल, इन सिंपल टर्म्स यू कैन से कि कार है, बाइक है, एक्सेलरेट करते हो आप, तो वही होता है एक्सेलरेशन। 20 मीटर पर सेकेंड पे होते हो आप, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, एंड एकदम से आप 50 पहुंच जाते हो, 60 पहुंच जाते हो, 70 पहुंच जाते हो, तो दैट इज एक्सेलरेशन। सो अब आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। F is equals to m into a। ओके, F is equals to m into a। अब इससे हम लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है ऐसा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि चलो हाँ, हमने ये तो बोल दिया कि फोर्स इक्वल लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है, हमको सब ये हमको क्लियर हो गया। लेकिन बुलेट जा रही है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एंड गन पीछे आ रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक। तो ये क्या है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है बुलेट का और गन का? क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या बोलते हैं? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? नो नो नो, इसको स्पीड नहीं बोलते हैं, स्पीड अलग हो गया, वो बाद में, हाँ नहीं, वेलोसिटी भी नहीं बोलते हैं। अरे सिंपल, आप लोग यूनिट्स देखो ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन, एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इट्स ओके, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, एक्सेलरेशन होता है, ठीक। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल मैथ्स है, कोई आर्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर, सिंपल नॉलेज एकदम है ये, आई टेल यू। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मास है, इसको नीचे ले आए हम। दिस एवरीवन नोस, बेसिक मैथ से सभी को पता है, एवरीवन नोज राइट, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स यहाँ पे तुम नेट लो, एक्सटर्नल जो भी बोलो उसको, तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। मास हमें पता है क्या होता है, फोर्स हमें पता है क्या होता है। तो अब ये बताओ, बुलेट का मास कितना ले सकते हैं? से अगर हम बुलेट का मास लेते हैं, अब आई हैवंट होल्ड अ बुलेट एवर, बट हेल्ड अ बुलेट एवर, बट ठीक है, चलो से 20 ग्राम से लेते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, जस्ट अ रैंडम थिंग आई एम टेकिंग, ठीक है। 20 ग्राम से लेते हैं उसका मास, बट गन, ठीक, गन का मास, ठीक, आई टेल यू कितना होगा, केजीज में होता है करीब कुछ, ठीक है। गन का मास हम लोग लेते हैं केजी में, कुछ होता है से 2 kg ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, गन का मास हमने लिया 2 kgs, बुलेट का मास लिया
20 grams. Sorry for my writing. Now, acceleration is equals to force upon mass. क्या बड़ा है यहाँ पे, 2 kg बड़ा है कि 20 ग्राम्स बड़ा है? पहले तो ये सिंपल से बताओ। ये पता है ना, स्मिता हैज टॉट दिस सो वेल। ये मतलब मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स एंड ये सब बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास इतने अच्छे से सिखाई जा रही है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ 2 kg बड़ा है। तो क्या इनवर्स रिलेशन के हिसाब से फॉर न्यू पीपल इनवर्स रिलेशन क्या होता है? आई हैव आल्सो टॉट दिस प्रीवियसली एंड एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ फॉर न्यू वंस। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है, सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ सीसॉ। तो सीसॉ में क्या होता है अगर एक इंसान नीचे बैठता है तो दूसरा इंसान ऊपर जाता है। मतलब अगर एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जाएगा। तो क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन। एक घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, इनवर्स हो गया। ठीक, इस केस में हमको पहले इनवर्स रिलेशन की जरूरत है, तो हम समझा देते हैं कि क्या होता है। तो ये बताओ, 2 kg बड़ा है 20 ग्राम, तो यू सेड 2 kg बड़ा है, बिल्कुल सही है। तो ये बताओ, 2 kg ज्यादा होने की वजह से ये बढ़ गया, तो ये घटेगा ना, एक्सेलरेशन तो घटेगा, राइट? अगर हम दोनों चीजें कंपेयर करें, सो यार मास 2 kg होने की वजह से बढ़ गया, 20 ग्राम से तो बहुत बड़ा है 2 kg, बढ़ा, एक्सेलरेशन घटा। बट अब गन पे, बुलेट पे आ जाओ जो कि 20 ग्राम्स है, तो मास कम होने पे एक्सेलरेशन तो बढ़ेगा ही, राइट? ये खुद ही सोच लो अपने रैंडम, तुम लोग मतलब आप लोग इसको बहुत जनरल टर्म से समझ सकते हो। कभी खुद ही सोचो कि एक साइकिल है, ठीक है? सपोज एनी वन ऑफ यू इज ट्राइंग टू पुश अ साइकिल। साइकिल को पुश करने में, मूव करने में, ठीक, साइकिल को मूव करने में, और एक कार से, कोई कार है, स्विफ्ट है, ठीक, कोई भी कार, ऑल्टो भी, मारुति भी, सबका बहुत हैवी मास होते हैं सारी, ठीक। तो एक कार को पुश करना आसान है कि साइकिल को पुश करना ज्यादा आसान है? किसको मोशन में लाना ज्यादा आसान है, कार को कि साइकिल को? इसमें तो जरूरत भी नहीं फिजिक्स की, इसमें तो डायरेक्टली सोच के बता सकते हो कि हाँ साइकिल को आसान है तुरंत मोशन में लाना, क्योंकि साइकिल का वेट बहुत कम होता है। साइकिल का वेट बहुत कम होता है, तो साइकिल के पास स्पीड आएगी, मतलब वेलोसिटी आ जाएगी, एंड वेलोसिटी आने के बाद फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मतलब कि क्या हो रहा है, वेट जिसका कम हो रहा है, मास जिसका कम हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब समझ में आया शुभम? अब समझ में आ गया व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? इस केस में क्या हो रहा था, बुलेट का मास तो बहुत कम है, तो वो तो आगे जाएगी तेजी से। फोर्स उसने उतना ही लगाया है, फोर्स नहीं चेंज हुआ है, फोर्स हमेशा सेम लगेगा, बट मास भी तो देखना है। मास जो है उस मास पे डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन, ठीक है? तो इक्वल एंड ऑपोजिट, फोर्स लगा लेकिन मास क्यों, सॉरी, एक्सेलरेशन क्यों डिफर किया? क्योंकि मास डिफरेंट है दोनों का, ठीक। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें आ गया। सर रनिंग विथ और विदाउट बैगेज ऑन बैक, हाँ भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, दोनों ही केस बिल्कुल सही है, ठीक। तो अब समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट यहां तक मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, ठीक। किसी को भी कौन कौन था लास्ट टाइम? आंचल, साक्षी, जो नए लोग ज्वाइन किए हैं ना, 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया, अगर उनको कुछ डाउट्स हैं अभी तो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कल फिर हम लोग थोड़ा और इसको एक्सटेंड करेंगे, आगे क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अगर इनर्शिया पे या फिर इस पे क्या नाम है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे या थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे कुछ भी डाउट्स है तो अभी यू कैन आस्क मी, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कंसिडरिंग किसी को कोई डाउट नहीं है, जो लोग नए भी ज्वाइन किए, सो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा ये केस देखना, ये इट वाज जस्ट फॉर लाफ, राइट? इसमें ऐसा कुछ भी, इसमें कोई लॉ नहीं लग रहा है, ये इन लोग का खुद का लॉ है, डेली सोप्स वालों का, एकता कपूर का, शी हैज मेड हर ओन लॉ। इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक? तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर नहीं आएगा, इट वाज जस्ट मेंट फॉर अ लिटिल गैग, ठीक है? इसको जस्ट फॉरगेट इट। ये है हमारा एग्जाम्पल, एंड ये भी जस्ट फॉर फन था कि क्या होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हमारा मेन एग्जाम्पल है, इससे हमको मतलब है, ठीक? ये सब में नहीं कि आ गया तो टिक मार के उस पर चले आए, या फिजिक्स के उसमें सब्जेक्टिव में लिख के चले आए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक? तो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। काफी क्लियर हो गया। when one body exerts a force on the other body, the first body experiences a force which is equal in magnitude in the opposite direction of force which is exerted. मतलब कि F1 गया राइट में पॉजिटिव, F2 गया लेफ्ट में नेगेटिव, क्लियर? F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर्स का कन्वेंशन हमने पढ़ा था, नहीं याद आ रहा हो तो यहां से भी देख लो। ये याद आया? फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। आई टोल्ड यू दैट द अदर डे कि अगर कटप्पा बाहुबली को इधर से मारते सो ही वुड हैव रेजिस्टेड द अटैक, लेकिन फोर्स यहां से नहीं लगा के, इस तरफ से नहीं लगा के, इस तरफ से फोर्स लगाया, सो ही कुड नॉट रेजिस्ट एंड लेटर ही डाइड। तो याद रखना फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, राइट मतलब पॉजिटिव। ओके, नाउ सो ये एग्जांपल एक बहुत सिंपल से एग्जांपल है, डेली हम लोग चलते हैं, सभी लोग चलते हैं, ठीक है? एंड डेली यूज है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ऐसी कोई जगह नहीं जहां लगता ही नहीं होगा। अगर ऐसा कोई एग्जांपल आप लोग को लग रहा है कि जहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगता है, देन प्लीज टेल मी, मैं भी ट्राई करूंगा ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं। इन जनरल यही एक लॉ है जो सबको गवर्न कर रहा है, ठीक? तो चलो, अब ये मत बोलना कोई कि सर हमने फोर्स ही नहीं लगाया तो वहां नहीं लगेगा, तो ये तो कोई बात नहीं होती है कि फोर्स नहीं लगाया। तो जब फोर्स नहीं लगाओगे तो रिएक्शन कहां से आएगा? जब किसी को मारोगे ही नहीं तो तुमको चाटा थोड़ी पड़ेगा। वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब फोर्स एक्ट करेगा देन ओनली वी कैन टॉक ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक? चलो अब ये हम वी आर वॉकिंग ऑन दी ग्राउंड, ओके, वी आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। हम लोग ग्राउंड को, ये फर्स्ट एग्जांपल, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल व्हिच आई गेव यू ऑन द वेरी फर्स्ट क्लास, चलो उस एग्जांपल पे आते हैं। ये देखो, सी आई मेड दिस दैट डे ओनली, द अदर डे ओनली आई मेड दिस, कि ये एग्जांपल देखो, फिजिक्स में जब आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट बाय व्हाट इज फिजिक्स, हाउ द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ एंड व्हाई, दैट इज फिजिक्स। तो इसमें क्या हो रहा है? दिस गाय इज पुशिंग अर्थ बैकवर्ड, ठीक? पुशिंग अर्थ बैकवर्ड्स, एंड अर्थ इसको आगे ढकेल रही है। तो अब यहां पे भी एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हम लोग अर्थ को ढकेल रहे हैं पीछे, तो अर्थ तो नहीं चल रही है, अर्थ इज नॉट मूविंग एट ऑल, केवल हम ही आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन वही हमने अभी क्लियर कर दिया कि अर्थ पहली बात तो स्टेबल है, ठीक? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, अर्थ स्टेबल है, ठीक? अर्थ नहीं मूव करती है, मतलब अपने एक्सेस पे मूव करी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसे स्टेबल एंड प्लस मास। अगर हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में अपने मास को कंसिडर करें, अर्थ का मास अराउंड 9 इंटू 10 to the power 29 kgs कुछ है शायद, ठीक? दैट इज ह्यूज। और अगर हम लोग अपने को कंसिडर करें तो हम लोग पॉइंट मास है केवल एक अर्थ के लिए, समझ रहे हो? मतलब ये कह सकते हो कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वी आर इक्विवेलेंट टू दैट इफ वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ्स मास। अर्थ का मास इतना ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, अर्थ मास ज्यादा, एक्सेलरेशन हो गई नहीं, कभी चांस ही नहीं एक्सेलरेशन दे पाओ। अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंडेंट है इनवर्सली, एक नीचे जाएगा दूसरा ऊपर जाएगा, सी सॉ वाला एग्जांपल। तो अब यहाँ पे क्या होता है इस केस में ना, हमने पीछे लगाया अर्थ पे फोर्स, अर्थ ने हम पे आगे फोर्स लगाया फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का फोर्स लगाती है। हम लोग ये फ्रिक्शन वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जान लो कि हमने पीछे फोर्स लगाया, अर्थ ने हमें आगे ठेला, हम लोग आगे गए, ठीक? ऐसा कुछ मतलब जादू नहीं है कि अर्थ कुछ ऐसा फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, बट वही बेसिक लॉ है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हम लोग बैठ भी नहीं सकते थे, फ्रिक्शन के बगैर वी कैन नेवर इमेजिन अ वर्ल्ड। तो फ्रिक्शन हम पे अर्थ लगा रही है, ठीक? फिर एक केस आता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स एंड वेट का हमारे। तो ये देखो ना यहाँ पे, आई टेल, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में गलत दिख रहा है, तो
है कोई भी, ठीक, जस्ट बेयर विथ माय ड्राइंग। ये पीछे फोर्स लगाया है इसने, अर्थ ने इस पे आगे फोर्स लगाया। एंड ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि हम हमारा वेट जो है दैट इज ऑल्सो फोर्स, राइट? हमारा जो वेट है वो भी एक फोर्स ही है, तो हम लोग ऊपर क्यों नहीं उड़ जा रहे हैं? ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि यार अगर हमारा वेट जो है, जो अर्थ पे लग रहा है, हम लोग खड़े हो रहे हैं तो अर्थ पे हमारा वेट लग रहा है, राइट? कभी वेइंग मशीन में अपने आप को आप लोग मेजर करो तो दिखाता है 80 केजीज 70 केजीज जो भी आपका वेट हो। तो ये भी तो होना चाहिए कि यार हम तो अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ हम पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है। ऐसा नहीं होता है, नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है। अर्थ भी हम पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है? एंड हमने एफबीडी का डिस्कशन किया था, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर एक हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, आगे क्वेश्चन भी है इस पे, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, उस पे उसका वेट होगा कुछ, उसने नीचे फोर्स लगाया से 20 केजीज, अर्थ भी उस पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। अगर अगर ये लॉ को डिफाई करना हो, जो कि नहीं हो सकता है क्योंकि ये सेंचुरीज, क्या बोलो, मतलब कितने सदियों सदियों से चलता आ रहा है कि ये लॉस को भी डिफाइन नहीं कर पाया है सिंस व्हेन न्यूटन डिस्कवर्ड इट। उसके पहले से भी थे बट ही डिस्कवर्ड इट लेटर। तो अगर मैं बोल दूं कि 20 केजीज तो हम लगा रहे हैं बट अर्थ हम पे लगा रहा है 25 केजीज, तो हम लोग उड़ जाएंगे। ग्रेविटी यहाँ पे है, हमारा वेट, हमारा फोर्स है, तो हम लोग इक्वल फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, अगर 20 नीचे लग रहा है, से अगर 20 को हम लोग लेते हैं नेगेटिव लेते हैं -20 एंड ऊपर को लेते हैं +20, तो क्या हो गया, -20 +20 क्या होगा, 0। इसीलिए हमारा हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं है। हम लोग बैठे अगर खड़े हो रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में कोई सॉरी वर्टिकल में हमारा कोई मोशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि हमने फोर्स लगाया और हमको फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, क्योंकि हमने फुट से कुछ फोर्स लगाया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज इट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। इसको क्लियर करते हैं, ठीक? अब यही एग्जांपल है, ठीक, यही एग्जांपल है। ये देखो, एक्शन, फुट पुशेस डाउन एंड बैक, फ्लोर पुशेस अप एंड फॉरवर्ड, ठीक? हम लोग को अर्थ ने पुश किया, ठीक है? क्लियर हो गया ये एग्जांपल सबको? थैंक यू शुभम, थैंक यू आकांक्षा। जिन लोग को क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, एंड जिसको नहीं हो रहा है वो बाद में पूछ लेना, नहीं अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है तो और अच्छे से समझा देंगे। बट इससे अच्छे से मेरे ख्याल से समझाना मुश्किल है, क्योंकि आई हैव यूज ऑल जोक्स, मीम्स एंड सब कुछ। सो अभी क्लियर हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आई स्टिल हेल्प। वी आर ऑल हियर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, तो ऐसा कुछ नहीं। तो ये हो गया क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चंस पे भी आएंगे अभी, ठीक है? तो पहले तो एक बार ये पढ़ते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ इंटरैक्शन फोर्स पेयर्स। A variety of action reaction pairs are evident in nature. We have listed a few below and they are as follows. Propulsion of a fish through a water is an example of the action reaction pair. A fish makes use of its fins to push water backward. The push serves to accelerate the fish forwards. The size of the force on the water equals the size of the force on the fish. The direction of the force on the water is opposite to the direction of the force on the fish. इसका मतलब, चलो इसको भी हटाओ तुम अभी, हाँ ठीक है, ये स्विमर वाला एग्जांपल समझते हैं। एक बर्ड को देख लो, बर्ड जब हवा में उड़ती है सो इट फ्लैप्स इट विंग्स डाउनवर्ड मोशन, वो वहां की हवा को नीचे पुश कर रही है एंड इन रिटर्न उसको हवा ऊपर कर रही है, ठीक? यही फिश का एग्जांपल है कि पानी को पीछे किया, पानी ने आपको आगे भेजा। यही हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, यही हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू। स्विमर का भी सेम एग्जांपल है, आपने पानी को पीछे भेजा, पानी ने आपको आगे पुश किया, ठीक? लिफ्ट, एक देख लो, लिफ्ट इज क्रिएटेड बाय हेलीकॉप्टर्स बाय द पुशिंग द एयर डाउन देयरबाय क्रिएटिंग एन अपवर्ड रिएक्शन फोर्स। जब एक हेलीकॉप्टर अपने हेलीपैड पे होता है तो होता क्या है, राइट? उसके जो विंग्स होते हैं ना, उसके ब्लेड्स, जो ब्लेड्स होते हैं, तो वो इतने तेज घूमते हैं, इतने तेज घूमते हैं वो कि वो हवा नीचे पुश करते हैं,
ठीक, इसको भी टेल थ्रू एन एग्जांपल। एक बार यहाँ पे ड्राइंग बना के हेलीकॉप्टर कैसे बनाए, चलो कुछ भी मान लिया, चलो ये हंसना मत यार तुम लोग बस, ठीक है। बस ऐसे सपोज कर लो कि देयर इज अ हेलीकॉप्टर यार, अब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन ड्राइंग जो भी, ठीक। इसका यहाँ पे पंखा होता है और दीज आर दी फोर ब्लेड्स। तो इतनी तेज ये रोटेट करते हैं, राइट, इतनी तेज घूमते हैं ये ब्लेड्स, ये हवा को नीचे पुश कर रहे हैं, हवा को नीचे पुश किया है इन्होंने, इन ब्लेड्स ने, ये हवा को नीचे पुश कर रहे हैं। और नीचे से जब नीचे पुश किया तो कुछ तो रिएक्शन आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसको नीचे पुश किया, हवा ने इसको ऊपर पुश किया, बस समझ में आ गया। यही यही होता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये हमारा एक्शन फोर्स था, ये हमारा रिएक्शन फोर्स था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर जा पाया। एक बहुत रॉकेट साइंस जो होती है, ठीक, रॉकेट साइंस को मतलब जो यहाँ पे जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, हम लोग ने बीटेक में भी आई हैव रेड एंड इवन इन माय स्कूल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में। रॉकेट साइंस ना थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि तभी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रॉकेट साइंस क्या है, बट रॉकेट साइंस का जो बेसिक है ना, बेसिक अगर एकदम बेसिक जानना हो, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। तो उतना आपको डिटेल में जाना नहीं है, बट रॉकेट साइंस का भी बेसिक यही है, उसका भी बेसिक यही है। आई टेल यू, उसका सिंपल सा बेसिक क्या है, रॉकेट ऊपर जाना है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ना कुछ उसका क्रायोजेनिक फ्यूल्स अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक, रॉकेट में यूज होते हैं, ठीक है। तो अब ये फ्यूल जो होते हैं अंदर कंबस्टन हुआ, जैसे ही बोलते हैं ना काउंट डाउन करते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 पे आते ही कंबस्टन स्टार्ट होता है। जैसे ही कंबस्टन स्टार्ट हुआ, अंदर से फोर्स निकला, केमिकल रिएक्शन अंदर हुआ, फोर्स निकला, फोर्स निकल के नीचे जमीन पे मारा उस फोर्स ने, उसको थ्रस्ट बोलते हैं। याद करने की जरूरत नहीं, बट हाँ बाद में याद कर लेना एक बार, ठीक है। थ्रस्ट, उसने नीचे इसको पुश किया, इसने नीचे इसको पुश किया, अरे यार, इसने नीचे पुश किया, इस केमिकल रिएक्शन ने नीचे पुश किया, इसने इसको ऊपर पुश किया, बस यही होता है रॉकेट साइंस में बेसिक फंडामेंटल यही होता है। बाकी उसके अलावा देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट यूज इन रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस काफी मतलब एक्सटेंसिव चीज है, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा वो चाहिए होता है, बट ठीक है उतना जानना नहीं है। सो बेसिक यही है कि नीचे पुश किया एंड रिएक्शन ऊपर गए हम लोग, यही रॉकेट साइंस है। बेसिक एकदम हो गया क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, चलो। नाउ आई वांट रिस्पांस फ्रॉम not everyone, but still yeah, if it would be really good that if you all participate, so even I will know कि yes, you all are getting the concepts clearly and fairly enough, decent तो at least होना चाहिए अभी तक के लिए कि हाँ समझ में आ रहा है। so I want reaction या मैसेज, रिएक्शन नहीं मतलब मैसेज कर दो कि है सर आंसर क्या है इसका, या फिर अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बट स्टिल ट्राई, एटलीस्ट ट्राई, ओके। क्योंकि यही सब पे क्वेश्चंस आएंगे। प्रीवियसली ऑल्सो मोमेंटम में भी सो कि कितने क्वेश्चंस हमने जो किए थे, दोस आर मैचिंग फ्रॉम दोस क्वेश्चंस which were asked in the prelims of UPSC, UPPCS and BPSC also. So हम लोग काफी सही जा रहे हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस आंसर करने से और एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठीक है। So now Newton's third law of motion is often summarized as every action has an equal and opposite reaction. A book rests on a table. If the weight of the book is the action force, what is the reaction force? So now let us do this question. Okay. Okay. Yes, sir. Host, please make sir panelist. He has joined. Good afternoon, sir. Yeah, go ahead. Go ahead. बहुत अच्छा. It's too good. Thank you. Okay. So now we have this question in front of us.
So let us try to answer this question कि क्या इसमें बोला जा रहा है, and I'll then explain through a diagram as well. D, push of the table on the book. Okay. Anyone else who agrees or seconds Shubham's answer that push of the table on the book? Anyone else? Because D is the correct answer. Now we'll see that why is D the correct answer. कितना मैंने खर्चा रहा 20,000 रुपये ना 5 ऊपर 10,000 ना Sir, you are unmute. Sir, could you please mute, sir? Thank you, sir. ठीक है. So now we have this table, which is lying at rest in your room or somewhere else only. Now we have a book kept on this table. Okay, we have a book kept on this table. अब सबसे पहली बात, बुक जो फोर्स लगा रही है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? जो book force लगा रही है, the force which the book is exerting on the table, what do we call that force as? Many of you might know, many of you might not, because I haven't taught this, but ठीक है, I have said this a few times कि what is the force exerted by us on the ground or by anything that has mass. No, Akanksha, that is not reaction force. रिएक्शन तो तब होगा ना जब एक्शन होगा. एक्शन रिएक्शन आर ऑपोजिट पेयर्स. ठीक है. सो रिएक्शन तब होगा जब देयर इज एन एक्शन. सो फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द एक्शन बाय द बुक. सो व्हाट इज दैट फोर्स, व्हाट इज दैट एक्शन फोर्स विच द बुक इज. ओके, डोंट मिक्स अप कॉन्सेप्ट्स. प्रेशर नहीं बोलेंगे इसमें, यहाँ पे प्रेशर नहीं बोलेंगे. जस्ट से इट एज वेट. प्रेशर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. ठीक है. जस्ट से इट वेट. यस, वेट. हमारा वेट जो होता है ना, दैट इज अ फोर्स. ठीक. सो नाउ बुक इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक. नाउ यू हैव माइट हैव अ क्वेश्चन कि अगर फोर्स लगा रही है बुक टेबल पे, तो टेबल तोड़ के नीचे आ जाना चाहिए फिर तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमने एक्शन फोर्स लगाया तो रिएक्शन फोर्स तो होगा, जरूर हो. बट देयर माइट बी अ क्वेश्चन व्हिच माइट कम टू योर माइंड्स कि अगर ऐसा हो रहा है, देन व्हाई इज नॉट द बुक पेनिट्रेटिंग थ्रू द टेबल? नहीं, लिमिटेड फोर्स नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं. इट्स ओके, आई टेल. हो क्या रहा है ना, जब बुक का वेट है, दैट द फोर्स, ठीक है, जब वो नीचे लग रहा है, राइट, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो हमारी टेबल है वो भी उस समय इक्वल एकदम बुक पे लगा दे रही है. सो अब क्या हो रहा है, पूरे सिस्टम का नेट फोर्स 0 हो जा रहा है. ठीक. या फिर एज गुंजन सेड लिमिटेड फोर्स है. सो नाउ चलो इसको एक्सटेंड करते थोड़ा सा. मान लो अगर नेट फोर्स को हमको 0 नहीं करना है सिस्टम के, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि अब एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं बुक पे. से हमारी टेबल जो है बहुत ही पतली प्लाई की बनी हुई है. नाउ वी टेक अ हैमर एंड लाइक से वी स्ट्राइक इट ऑन द बुक. ओके, वी स्ट्राइक इट ऑन द बुक. तो अब क्या हो रहा है, वेट तो लग रहा था उसका, ठीक है, वेट के हिसाब से रिएक्शन लग रहा था. लेकिन अब क्या हो गया, द एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोगों ने बुक पे लगाया, एक्सटर्नल फोर्स प्लस द वेट ऑफ द बुक, उसने क्या किया, वो थ्रेशोल्ड को पार कर दिया. सो नाउ द टेबल हैज ब्रोकन एंड द बुक फॉल्स डाउनवर्ड्स. अब इस केस में भी देखो एक्शन रिएक्शन लगेगा, क्योंकि हर एक केस में एक्शन रिएक्शन लगेगा तभी हर चीज चलती है. सो अब ये हैमर जो है हमारा, ये जो हमारा हैमर था, तो अब इसने इस पे फोर्स लगाया F1, तो बुक इस पे फोर्स कितना लगाएगी? और क्या ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे? F1 बुक पे लगाया, F2 उस पे लगा, इक्वल होंगे. फिर वही बात फिर से एक बार बता दे रहा हूं, एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक.
बट एक्सेलरेशन किसको ज्यादा मिलेगा वो डिपेंड करता है मास पे हमारे. इफ वी हैव द मास विच इज लेस, जो कि हमारा बुक है उसका मास लेस है, तो इसीलिए उसको एक्सेलरेशन मिला, वो नीचे गिर गई. बट हैमर के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसका मास बहुत हैवी है, उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे हम लोग. तो ये दो अलग सिस्टम्स की बात, आई लाइक इनकॉर्पोरेटेड बोथ ऑफ दिस सिस्टम्स टुगेदर. ये एक अलग सिस्टम है हमारा, ये एक अलग सिस्टम है हमारा, बट एक्शन रिएक्शन दोनों सिस्टम पे लग रहा है. तो एक चीज और याद रखना, कोई भी रेफरेंस फ्रेम कुछ भी हो, हर जगह एक्शन रिएक्शन लगेगा. तो बस बुक पे F1 लगाया एंड बुक ने इस पे F2 लगाया, लेकिन इसका मास बहुत ज्यादा था तो इसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा. बट इसका मास बहुत कम था, इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, बिकॉज वी हैव रेड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. ठीक, ये कभी भी कोई पूछ ले कि एक्शन रिएक्शन इक्वल है कि नहीं, जस्ट स्ट्रेट अवे ओके एकदम साफ वी कैन से कि हाँ एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल होंगे. ठीक, दो केसेस वी आर स्टडीड दोस सेपरेटली. ये तो हमको उसका आंसर मिल गया. नाउ वील मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन सबको क्लियर? चलो, अ मैन एंड अ किड accidentally hit each other. What is true about the forces experienced by them? Please answer this question. Which option or which statement do you think is correct according to the question which has been asked? Yes, correct answer. They are equal in magnitude, क्योंकि I have just now said एकदम blatant words में कि एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल होंगे. डिफर कर सकता है हमारा एक्सेलरेशन, बट फोर्स डिफर नहीं करेगा. अगर फोर्स डिफर कर जाएगा तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिफाइड हो जाएगा, फेल हो जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि अभी तक नहीं फेल हुआ किसी भी कंडीशन में. ठीक, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है. लेकिन now let me add one more option to this question and then tell me if I add this option what would be the answer. Okay, so let's make it a multiple choice question. So I'll add one more option here. Option E, they are opposite in direction. Now tell. Now अब क्या आंसर होना चाहिए? अब क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? नाउ दिस हैज बिकम अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अब क्या हो सकता है इसका आंसर? हाउ कैन वी प्रेजेंट द आंसर नाउ? अब क्या हो सकता है? एनीवन? शुभम? ए एंड ई बोथ? चलो ठीक है. नाउ लेट्स मेक दिस क्वेश्चन मोर टफ. टफ नहीं, मतलब बहुत सिंपल है, बट इफ सॉरी सिंपल है. दोज हु हैव लर्न्ड द कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत सिंपल है. आई टेल यू. ऑप्शन ए है, ऑप्शन ई है हमारे पास. नाउ आई ऐड वन मोर ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. ओके, देन टेल द आंसर. व्हाट कुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ऑप्शन एफ, acceleration of kid would be less than that of the man. Now tell the answer. Acceleration of the kid would be less than that of the man. A and E है, F नहीं होगा. Sure, everyone is sure that F आंसर नहीं हो सकता है. Exactly. ठीक है. You all have got this concept very easily. ठीक है, बिल्कुल सही. क्यों नहीं होगा? क्योंकि we have already studied जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा ज्यादा होगा. So yes,
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ मास यहाँ पे अगर हम ये कर देते कि एक्सेलरेशन ऑफ द किड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मैन, तब क्या होता, ए ई एंड एफ तीनों ऑप्शन हो जाते, तब तीनों होता। हाँ ओके फाइन, थैंक यू एवरीवन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देन वील कॉल इट फॉर द डे। ओके, after that, okay, two more questions, so I'll take 10 minutes more, but ये questions बहुत अच्छे हैं, ठीक है। A man is standing still, the force by man on the earth is F1, the force by earth on the man is F2, which of the following is correct? मतलब कि सबको क्लियर हो गया अभी। आई एम रियली हैप्पी कि ये सबको समझ में आ गया। ओके फाइन, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स वेक्टर्स की बात हुई मतलब कि डायरेक्शन आ गया, एंड एज सून एज वी आर हैंडलिंग डायरेक्शंस, दैट मीन्स देयर इज अ कन्वेंशन व्हिच वी हैव टू फॉलो, लेफ्ट इज फॉर नेगेटिव, राइट इज फॉर पॉजिटिव, सो यस F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, एग्जैक्टली माइनस 20 प्लस 20, यस एग्जैक्टली। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन। When a small body hits a very large body, then the force, then the options there are. बस ये फाइनल क्वेश्चन है, आफ्टर दैट वी आर डन फॉर द डे। फिर नेक्स्ट कल हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे इसके पे। जस्ट क्विकली आंसर दिस, बहुत इजी है ये भी, बस सी सिंपल, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में ही काम करते हैं। So yes, we are done for the day. And if anyone has any doubts, queries, then you can text me personally as well as on the basic foundation course. Do not spam on the main group. थैंक यू यश, बहुत अच्छा आपने किया, क्लास इज वेरी नाइस, बहुत ल्यूसिडली आपने क्लियर किया। एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जो आपने यश कॉन्सेप्ट बताए हैं उसका जो ह्यूमन डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल वाला वो भी बता देना नेक्स्ट क्लास में। श्योर सर, श्योर। हाँ, कहते सारी किताबों में लिखा होता है 4-5 एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं, वो भी चूंकि सवाल उसके आने की संभावनाएं काफी होती है, वो कर दोगे थोड़ा और आराम हो जाएगा। अदरवाइज वेरी नाइस लेक्चर, मेरे ख्याल से इससे बेहतर पढ़ाना आसान नहीं है। शायद मैं भी पढ़ाता तो इतना अच्छा ना पढ़ा पाता। मेरा जो साइंस क्लास है, यश क्लास इज बेटर देन माय ओन साइंस क्लास। तो बहुत खुशी की बात है कि ये अपने एस्पायरेंट इस तरह ले जा रहे हैं, और साइंस आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बचा हुआ पोर्शन जो पॉलिटी है, कल्चर है और क्या ज्योग्राफी है, कल से शौर्य भी क्लास पे आ रहे हैं, तो विद इन नेक्स्ट 30-40 डेज विल ट्राई टू फिनिश ऑल इट। थैंक्स अ लॉट यश, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Okay, so yes, there's the questions which sir has said we'll be doing it tomorrow, and for today we are done for today. And जो लोग नए आए हैं, right, there are many people who are like new to the venture. For example, आज ही कल एड हुए गुंजन, साक्षी, आंचल एंड मेनी अदर्स। सो ना आप लोग को ये लग रहा होगा कि ये अचानक से क्या हो रहा है। इफ यू आर नॉट फ्रॉम साइंस साइड, सो ये पीपीटी दिस विल बी गिवन टू यू एट द एंड ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स। अब उसके बाद समझ में आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि बहुत लूसिडली आई एक्सप्लेन्ड एंड मीम्स भी डाले हैं, जोक्स भी डाले हैं, सब समझ में आएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आज की क्लास में कोई डाउट है, so just ping me or type in the basic foundation course. So thank you everyone, and I hope this was a fun session, and we'll meet tomorrow once again. That is my original